Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Farouk, your course instructor for GIS and remote sensing. And this is the week number 11. And we are going to talk about some of the fundamentals of digital remote sensing in this lecture. In the previous lecture, we started with the vision and colors, and we defined the different concepts related to these sensors. And then we defined the different principles related to the remote sensing, like electromagnetic radiations. And then we talked about different type of interactions of those electromagnetic radiations with the environment, with the atmosphere, and with the Earth's surface. And then we talked about the active and passive remote sensing. So today we are going to talk about the few other important things. Those are actually the basis of digital remote sensing. This is the reading stuff and browsing available for you to have more interaction with remote sensing. There are some good books, and I have already given you this book as a reference, Remote Sensing of the Environment and Earth Resource Perspective. And there are some other books, and if you find the PDF of these books online, that would be great. All right. So why use satellite remote sensing? Our course will be, based on the discussion of satellite remote sensing most of the time. So, because that is the type of remote sensing that is widely used to study the in overall environment of this Earth and the surrounding atmosphere. So, first of all, source of spatial and temporal resolution. This is actually the basic principle. We already know there are different type of resolution of the satellite data. So we study the different type of environmental things with respect to its spatial and temporal resolution. So spatial mean how big is the size of the pixel that is collecting the information of the surface of the earth. And definitely we need to define different sensors have different type of spatial and temporal resolution. So accordingly we need to define their use, what type of resolution we need to use to study a particular phenomena. It all depends on the application. So we study the land surface, oceans, and atmosphere and ice. So all these things are related to the locations, right? So we need to study the locations of these kind of environmental entities, and then we need to study how these are changing. So to study the changes in particular phenomena, we need to see the differentiation of different satellite imageries of a particular area. How the landform is changing, right? So for that, we need to have the temporal information. Temporal mean maybe in 19 let's suppose 50 we have a particular type of information, we have a map of a particular area. And if we have another map in 1960 and then we have 1970 related to the land use of a particular area, in this way we will see there are some of the changes those are going on the land surface. It means population is getting increased, deforestation is getting increased, or some other kind of changes are going on. So this is related to the land use. So if we so this is called as temporal information. It means the information that is related to a particular time period about a particular area. So this is called the temporal information. If you have the information of the same area with respect to different times, then we can perform the change detection studies based on that information.
So we also use remote sensing to monitor and develop understanding of the environment. So this is actually the change detection. Information can be accurate, timely, consistent, and large depending upon the scale, right? Some historical data, we can also analyze some of the historical data related to 1960s, 70s, 80s, 19s. In this way, we can have a kind of, the study of the changes in the environment of the earth, and we can also have its application in the determination of the weather, prediction of the weather, climate, temperature, atmospheric gases, land surface changes, aerosols, and other kind of environmental changes. And there are definitely some commercial applications of remote sensing data as well, like weather, agricultural monitoring, and resource management, like the natural resources like mineral exploration. All right. So the question is that, I mean, if it has all kind of application, those are good for the study of Earth environment, then we need to use this data everywhere to study these kind of phenomena. But remote sensing has a little concern, you can say. And what is that concern? The data is not freely available, so it could be expensive depending upon the resolution of the data. Some of the data is free. We can use that data for the regional studies. But if we have a kind of very specific study and we want to discuss something or study in detail, then we need to have a good resolution data. But that may not be easily available because we need to pay for it. So it could be expensive, can be technically difficult. Sometimes we have some difficult terrains like Himalayas. So sometimes we cannot acquire the data of those particular areas where the mountains are steeply inclined. So there might be some of the data gaps, but we need to define how we are going to access the particular information through using different remote sensing tools. So this is all depends upon the requirement and the availability of the tool. So it is not direct information. I mean, remote sensing, what it is detecting, actually, this is related to the measurement of the electromagnetic radiations response, right? So it is actually a surrogate variable. It means whatever the material we are going to identify on the surface of the earth, we actually doing what? We are taking the help of the electromagnetic radiations response to that material, right? So how much is the radiations are being absorbed by the material? How much are reflected? These measurements are made to indirectly identify a material, right? It means if we have water, it will be having the different reflectivity. Concrete will be having different reflectivity. Different type of rocks will be having different reflectivities, and vegetation will be having different reflectivity. So in the form of percentage reflectance or brightness value, we can identify the different type of materials, right? So this is actually a kind of indirect way out to identify the materials. All right, so there are major programs. Those are already launched by different countries to access the information related to the Earth environment based on the remote sensing technology. सो सैटेलाइट्स में आपके पास क्या है कि ये पर्टिकुलर एक आप देख सकते हैं कि एक ऑर्बिट होता है जिसके अराउंड जो है वो एक सैटेलाइट जो है वो इवॉल्व करता है, और इवॉल्व करके वो किसी पर्टिकुलर एरिया की इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर टाइम में लेता है, फिर उसके बाद दूसरे एरिया की इंफॉर्मेशन, और इस तरीके से पूरे के पूरी जो अर्थ है उसको आप स्कैन कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ
एट एक ही टाइम में सारी अर्थ स्कैन नहीं होती, बल्कि उसको डिफरेंट राउंड ट्रिप्स लगाने पड़ते हैं सैटेलाइट को, और उसकी बेस के ऊपर फिर आप जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या कहते हैं उसे, उसको आप एक्वायर करते हैं पूरी अर्थ से रिलेटेड, राइट। सो सम ऑफ द जो आपके पास सैटेलाइट्स हैं वो जियो स्टेशनरी हैं, ठीक है। जैसे मेट ऑफिस के जो सैटेलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो वेदर की जो चेंजेस हैं उसी के ऊपर उनका फोकस होता है, और उसकी बेस के ऊपर वो वेदर से रिलेटेड जो है वो प्रिडिक्शंस करते हैं, ठीक है। इसमें जैसे मेटियोसैट यूरोप का है, गोज यूएस का है, जीएमएस जापान का है, इनसैट जो है वो इंडिया का है। सो ये डिफरेंट जो आपके सैटेलाइट्स हैं ये वेदर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो कि पोलर ऑर्बिटिंग है, जो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं अर्थ के अराउंड, और जो जियो स्टेशनरी होती है वो भी मूव तो करते हैं, लेकिन क्या है कि वो अर्थ की रोटेशन के साथ मूव करते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे वो एक जगह पे फिक्स्ड है, ठीक है। तो जिस तरह से वो रीजन मूव करता है उसी तरह से सेल्फ ऑर्बिटिंग के दौरान जो अर्थ की है उसी तरह से सैटेलाइट भी उसको उसी तरीके से रीओरिएंटेट करता है ताकि वो उसी रीजन के ऊपर ही रहे। तो वो ऐसे लगता है जैसे ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। लेकिन जो ऑर्बिटिंग वाले हैं उसमें होता है कि वो प्रॉपरली ऑर्बिट कर रहा होता है अर्थ के अराउंड, वो एक टाइम में एक जगह पे होता है और दूसरी जगह टाइम में दूसरी जगह पे होता है, ठीक है। जैसे कि पिछली ये जो है आपके पास एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो उसमें स्पॉट है फ्रांस का, नोवा है यूएस का, ईआरएस वन जो है 1 2 एनवीसैट ये यूरोप के हैं, एडियोज जर्स जापान का, ये सारी एब्रीविएशंस हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज की। रेडार सेट कनाडा का है, इस तरह से आपके पास EOS और उसके बाद NPOESS लैंड सेट नोवा ये भी यूएस के हैं, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम जो है रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड, दीज आर ऑलरेडी आई मीन working to get the sometime global information, sometime the regional information. तो रिमोट सेंसिंग सिस्टम क्या होता है, वो ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। आई मीन इसमें आपके पास एक एनर्जी सोर्स होता है। अगर आप पैसिव रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं तो मेन जो सोर्स है वो है सन। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म का मतलब है कि जिसको यूज करके सेंसर जो है वो इंफॉर्मेशन लेता है। तो प्लेटफॉर्म में जो है वो आपके पास जैसे सैटेलाइट जो है वो एक प्लेटफॉर्म जिसमें सेंसर्स लगे होते हैं रिमोट सेंसिंग के, और उसके अलावा जो आपका जो क्या कहते हैं उसे प्लेन है, एयरप्लेन, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आपके पास प्लेटफॉर्म के एग्जाम्पल जैसे ड्रोन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, तो ये सारे प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप रिमोट सेंसिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंसर आ जाता है, डेफिनेटली प्लेटफॉर्म के ऊपर सेंसर होता है। उसके बाद आप सेंसर क्या करता है, डाटा रिकॉर्डिंग करता है, और फिर उसके बाद डाटा की ट्रांसमिशन करता है। सैटेलाइट बेस्ड जो डाटा है वो आपका ग्राउंड स्टेशंस के ऊपर है। जैसे नासा जो है ये सैटेलाइट से रिलेटेड आपका जो है वो बिगेस्ट एजेंसी है इन द वर्ल्ड, और वो क्या करती है, सैटेलाइट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव करती है, ठीक है। उसके बाद ये कि ये सैटेलाइट्स नए जो है वो डिज़ाइन करके आपके जो है ना वो डिफरेंट डायरेक्शंस में भेजते भी हैं, डिफरेंट अदर प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए और अर्थ के अराउंड इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो डाटा आता है उसको आप क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है। डाटा प्रोसेस करने के बाद आप क्या करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, और उसकी बेस के ऊपर आप जो है वो किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना के से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन जो है यूजफुल उसको आप उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो these are all the different phases of the remote sensing system. So we do the remote sensing of the environment. This is our main focus. वैसे तो हम different other satellites की भी remote sensing करते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्योंकि हमारा कंसर्न नहीं है, ओवर कंसर्न इस के जो remote sensing इसकी एप्लीकेशन जो है वो अर्थ साइंसेज में क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। So this is the global remote sensing map of vegetation from MODIS instrument, ठीक है। MODIS जो है ये भी एक सैटेलाइट का नाम है, सेंसर का नाम है ये, ठीक है, जिसके थ्रू ये पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से वेजिटेशन की हेल्थ है उसकी बेस के ऊपर ये जो मैप है ये बनाया गया है, ठीक है। सो यू कैन सी दैट सम ऑफ द एरियाज आर barren, some of the areas are densely vegetated, some of the areas are lightly vegetated, so it all depends, ठीक है।
तो इसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पे ये है सरफेस टेम्परेचर की, कि ये सारा जो है वो डिफरेंट रीजन्स का जो सरफेस टेम्परेचर है उसकी बेस के ऊपर ये सैटेलाइट जो मैप है वो बनाया गया है। ठीक है, सो द ग्लोबल मैप ऑफ द सी सरफेस टेम्परेचर, कॉन्टिनेंटल सरफेस टेम्परेचर के मैप्स भी अवेलेबल है, लेकिन ये है आपके पास सी सरफेस का मैप है। ठीक है, ये भी मॉडर्न जो है आपका जो क्या कहते हैं उससे सैटेलाइट है उसकी बेस पे ये मैप जो है वो डेवलप किया है। ऑल राइट, so now we are going to talk about the basic fundamentals of the digital remote sensing data। ठीक है, सबसे पहले ये कि वो जो रिमोट सेंसिंग के दौरान आपके पास जो आपके पास स्कैन्स आते हैं अर्थ सरफेस के, ठीक है, उसको आप इमेज कहते हैं। ठीक है, रिमोट सेंसिंग इमेज। इमेज क्या होता है? अ मैट्रिक्स एरे ऑफ डिजिटल नंबर्स representing brightness value BV of the remotely sensed ground area। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? अब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो है पहले भी हमने एक चीज डिस्कस की थी। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है और हमने क्या करना है? अब मैट्रिक्स एरे ऑफ डिजिटल नंबर्स, उस पर्टिकुलर एरिया का जो अगर आप इमेज लेते हैं तो वो इमेज कैसे आता है? आपको पता है कि जो रिमोट सेंसिंग डाटा होता है ये रास्टर डाटा होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इसके अंदर ये क्या होते हैं? डिफरेंट पिक्सेल्स होते हैं, ठीक है, या सेल्स होते हैं। जैसे ग्राफ पेपर पे ग्रिड्स लगे होते हैं तो इक्वल बने नहीं है, लेकिन ये इक्वली होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि मैट्रिक्स एरे ऑफ डिजिटल नंबर्स, तो ये सब का कोई ना कोई डिजिटल नंबर होगा। ठीक है, इसके अंदर जो आईडी है ना ये वाली, ये जैसे ये रिफ्लेक्टेंस वैल्यू है, ठीक है, तो ये इसके कोई नंबर होंगे। ये तो मैं वैसे काउंटिंग लिख रहा हूँ, यहाँ इनके नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, वो रिफ्लेक्टिविटी की बेस के ऊपर। तो इसको कहते हैं, जो ये जो नंबर्स हैं इनको कहते हैं डिजिटल नंबर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, क्विज़ेस में भी आ जाते हैं। डिजिटल नंबर, डिजिटल नंबर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ब्राइटनेस वैल्यू। ब्राइटनेस वैल्यू का मतलब क्या है? रिफ्लेक्टिविटी। तो ये जो नंबर्स हैं ये ब्राइटनेस वैल्यू को शो करते हैं कि कहाँ पे अगर किसी जगह पे डार्क स्पॉट है, हो सकता है वहाँ पे पानी हो, किसी जगह पे लाइटर स्पॉट्स हो सकता है वहाँ पे कंक्रीट हो, वहाँ पे जो है वो आपकी कोई और ऐसी लाइटर कलर्स की कोई क्या कहते हैं उससे, वहाँ पे कोई मटेरियल्स अवेलेबल हो। ठीक है, तो वो जो इसे कहते हैं ब्राइटनेस वैल्यू। जितनी रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा होती है मटेरियल का कलर लाइट होता है, जितनी रिफ्लेक्टिविटी कम होती है इसका मतलब मटेरियल जो है वो डार्कर है। ठीक है, ब्राइटनेस ऑफ द रिमोटली सेंस्ड ग्राउंड एरिया। लेट्स सपोज कि ये जो आपका एरिया है ये 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर है, तो ये टोटल एरिया के अंदर जितने भी पिक्सेल्स हैं उसके हिसाब से इनका जो डिजिटल नंबर उसको ब्राइटनेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो डीएन इज असाइंड टू अ स्पेसिफिक पिक्सल। देखिए जैसे ये आपके पिक्सल है, ये डीएन उसके साथ असाइंड है। इसका मतलब क्या होगा? इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर छोटे से एरिया में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एवरेज होकर यहाँ पे वो एक वैल्यू दे देगी। लेट्स सपोज ये इसका पिक्सल साइज जो है वो 1 बाय 1 मीटर है, इसका मतलब 1 बाय 1 मीटर में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मटेरियल्स हैं, सबकी रिफ्लेक्टिविटी जो है वो एवरेज आउट होकर एक वैल्यू दे देगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब है ग्रिड साइज का और डिजिटल जो आपके पास जो नंबर्स है उसका। All right, so DN is assigned to a specific pixel which is defined by its location. Definitely इस pixel की एक location है, इसकी अपनी एक location है और ये सारा जियो रेफरेंस डाटा होता है। ठीक है, लोकेशन इन अ स्पेसिफिक रो एंड कॉलम, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी कि ये इस तरह से जो रास्टर डाटा होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसमें रोज और कॉलम्स होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि किसी भी किस पर्टिकुलर पिक्सल के अंदर कौन सी डीएन वैल्यू, तो उसका रो नंबर होता है, उसका कॉलम नंबर। जैसे ये वाला है, अब इसका ये कौन सा, ये सेकंड रो है 1 2, और उसके बाद ये कॉलम कौन सा है, ये कॉलम ये है थर्ड। ठीक है, ये थर्ड कॉलम है, रो सेकंड है और थर्ड कॉलम। इस तरह से हम आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि किस पिक्सल की जो लोकेशन है वो क्या है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि जो रिमोट सेंसिंग डेटा है वो एक इमेज की फॉर्म में आप एक्वायर करते हैं, राइट। उसके बाद जो पिक्सल है, पिक्सल को हमने ऑलरेडी डिफाइन कर ही दिया है कि अ 2 डायमेंशनल पिक्चर एलिमेंट दैट इज द स्मॉलेस्ट नॉन डिविजिबल एलिमेंट ऑफ अ डिजिटल इमेज। ठीक है, जिसे आप स्पेशियल रेजोल्यूशन भी कहते हैं कि छोटे से छोटा ग्रिड साइज, पिक्सल साइज, सेल साइज, जो कि आप फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते,
उससे छोटा उसे नहीं बना सकते। इसे कहते हैं पिक्सल। ठीक है, मेगा पिक्सल। जैसे आपके कैमराज है मोबाइल के, तो जितने मेगा पिक्सल ये कैमरा होता है उतना उसका पिक्सल साइज छोटा होता है। और आप ये नहीं कर सकते कि उसको फर्दर डिवाइड, आप किसी कैमरे की रेजोल्यूशन अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, क्योंकि उसकी वो फिक्स्ड है कि जो मिनिमम पिक्सल साइज उसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने कैमरा की कॉन्फ़िगरेशन में फिक्स कर दिया, उससे छोटा, उससे फर्दर आप उसकी रेजोल्यूशन नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो इसको कहते हैं पिक्सल। बैंड क्या होता है? अब ये बैंड्स के बारे में भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उसके, आप ना जैसे इस तरह वेवलेंथ है अगर, तो आप उसमें डिफरेंट जोन्स बना लेते हैं वेवलेंथ के इस तरह से। ठीक है, तो इसके इन वेवलेंथ की जो लाइट्स हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वो जो रेंजेस होती हैं ये बैंड्स बन जाते हैं। जैसे ये B1 है, ये B2 B3 उस तरह से BN तक आप जाएं, जितने भी इस तरह से ये बैंड्स बन जाएंगे। तो जो डिफरेंट सेंसर्स होते हैं उसमें एक से ज्यादा बैंड भी हो सकते हैं कि वो एक ही पर्टिकुलर एरिया को स्कैन करते हैं। अगर लेट्स सपोज 7 बैंड्स है वहां पे, तो 7 दफा उसको स्कैन करेंगे, 7 जो इमेजेस हैं वो आपके पास आएंगे। अगर किसी सैटेलाइट के जो है वो रेजोल्यूशन में एक ही बैंड है, तो इसका मतलब क्या है कि वो फिर एक ही इमेज आएगा आपका। ठीक है, तो डिफरेंट बैंड्स जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, वो यूज होते हैं डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, all right, so individual multispectral region to which a sensor is sensitive, spectral resolution भी उसे कहते हैं। कि बैंड का साइज एक रीजन होता है, मतलब एक वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ के, उसको हम कहते हैं बैंड। ठीक है, उस रेंज को बैंड कहते हैं। और उस पर्टिकुलर बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो आप किसी भी एरिया पे रिफ्लेक्ट करवाते हैं, उसके बाद उसको मेजर करते हैं। तो ये जो है वो बैंड का जो साइज होता है ये छोटा बड़ा हो सकता है। डिफरेंट जो सेंसर्स होते हैं उनका बैंड का जो साइज है वो छोटा बड़ा हो सकता है। जितना बैंड का साइज छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो रेंज है वेवलेंथ की वो कम होगी, उतनी बेहतर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो रेजोल्यूशंस हैं ये हमने आगे डिस्कस करनी है। सो जो रिमोट सेंसिंग डेटा आपके पास आता है, जैसे मैंने कहा कि एक से ज्यादा बैंड होते हैं। ठीक है, वो जो बैंड्स होते हैं उसमें ये कॉलम्स और रो के फॉर्म में ये सारा डाटा जो है आपका, जैसे मतलब ये एक इमेज ही है, जो इमेज की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। तो ये किसी पर्टिकुलर एरिया में लेट्स सपोज अगर एक बैंड, अगर एक सेंसर का एक ही बैंड है उसके अंदर, तो एक इमेज आएगा। ठीक है, उसमें ब्राइटनेस वैल्यूज जो है जैसे DN नंबर, डिजिटल नंबर जो है वो हमारे पास आ जाएगा, तो एक ही होगा। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में लेट्स सपोज कि आपके पास क्या कहते हैं उसे, जो इंफॉर्मेशन एक्वायर हो रही है, वो जो सेंसर है उसके 4 बैंड्स हैं। तो इस तरह से ये देखें कि ये बैंड्स की फॉर्म में आपका जो डाटा है ना वो लेयर, ये डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि हर लेयर के अंदर जो है ना वो इसी तरह से आपके पास ये रोज और कॉलम होंगे, और उसके अंदर ये डिजिटल नंबर्स जो है वो पिक्सल्स की वैल्यूज होंगी। तो डिफरेंट बैंड्स में ये वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, ये आपने याद। ऑल राइट, सो इस तरह से आपके पास किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर लेट्स सपोज वो जो इंफॉर्मेशन है, अगर 4 बैंड्स वाला सैटेलाइट सेंसर है तो उस 4 इमेजेस आएंगे और एक दूसरे के ऊपर वो स्टैक हो जाएंगे। अगर वहाँ पे 10 बैंड्स हैं, 100 बैंड्स हैं, तो 100 बैंड्स के अंदर हर एक का अपना अपना एक जो है वो इमेज आएगा। ठीक है, उसमें ये जो डिजिटल नंबर है इसकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। डिफरेंट जो आपके जो बैंड्स है उसमें ये रिफ्लेक्टिविटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ बदल जाएगी, तो उसकी बेस के ऊपर क्या है कि आपकी ये वैल्यूज डिफरेंट बैंड्स में डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ब्राइटनेस वैल्यू से मतलब क्या है, जैसे अगर आपका 8 बिट डाटा है, ठीक है, तो उसमें 256 शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। तो उसके हिसाब से हर बैंड के अंदर जो है ना, अगर आप हर बैंड जो है वो शेड्स ऑफ ग्रे में इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड करता है, जिसको रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन भी कहते हैं। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन जो है वो इस तरह से हर बैंड जो है वो शेड ऑफ ग्रे में ये जो है वो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वो जो शेड्स ऑफ ग्रे हैं वो डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं, वो कलर के शेड्स भी हो सकते हैं, जैसे प्योर रेड है, फिर उसके बाद पिंक है, फिर उसके बाद वो डार्कर होते जाते हैं शेड्स। तो वो सारे डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी ब्राइटनेस वैल्यू के ऊपर। ठीक है, ऑल राइट, तो ये इस तरीके से आपके पास जो है वो किसी भी
किसी भी जगह पे आपने ब्राइटनेस वैल्यू फाइंड करनी है तो वो आप इस तरीके से करेंगे, जैसे कि ये आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है कि 24 के ऊपर जो है वो उसका रो नंबर क्या होगा और कॉलम नंबर क्या होगा, ठीक है, और बैंड नंबर ये एंड पे क्या है, ये 1 है, ये फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, और उसके बाद आगे ये 1 क्या कर रहा है कि बैंड नंबर 1 में वैल्यू क्या है 24। इस तरह से अगर आपके पास बैंड नंबर 2 है, वो बैंड नंबर 2 यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरह से वो उसी एरिया में डिफरेंट बैंड्स के अंदर क्या क्या वैल्यू आती है उस पर्टिकुलर रीजन की, ठीक है। ऑल राइट, सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड के रिमोट सेंसर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके पास पैसिव रिमोट सेंसर क्या करते हैं, जो कि ना सन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को या अर्थ की जो है उसको सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट नहीं करते, right? So passive remote sensor contribute to imagery and data for land cover mapping, change detection, snow monitoring, थर्मल चेंजेस एंड टेरेन मॉडलिंग। ये सारी चीज़ों के लिए आपके पैसिव रिमोट सेंसर्स यूज होते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एक्टिव क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट हैविली टू डाटा फॉर एक्सट्रीमली एक्यूरेट टेरेन मॉडल्स, ठीक है। एक्टिव सेंसर जो है वो अगर आपने डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स बनाने हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के, तो उसको काफ़ी डिटेल में जो हम जब जाते हैं किसी एरिया की लेट्स सपोज सेंटीमीटर्स तक रेजोल्यूशन में आपने वो डाटा एक्वायर करना होता है, तो वहाँ पे फिर आप एक्टिव रिमोट सेंसर जो है वो यूज़ करते हैं, जहाँ पे अगर लेट्स सपोज लैंडस्लाइड की वजह से कोई डेफॉर्मेशन हो रही है, कोई क्रीपिंग हो रही है, कोई आइस मूव कर रही है, ठीक है, जैसे ग्लेशियर्स हैं, तो उसके लिए भी आप इसको मतलब जो आपकी हाई चेंज जो काफ़ी डिटेल में अगर मूवमेंट हो रही है और उसकी रेजोल्यूशन आपको हाई है, हाई आपके पास सैटेलाइट बेस्ड सेंसर्स की है, तो उसकी बेस के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रही हैं इन्वायरमेंट के अंदर, ग्राउंड की मूवमेंट हो रही है, सब्सिडेंस हो रही है किसी जगह पे, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो आप एक्टिव रिमोट सेंसर से ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। All right, so these large quantities of data can be geo-referenced and integrated into one large GIS system, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस कर रही है, उसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज कर रही है, तो उसका मतलब क्या होगा, उतना ज़्यादा जीआईएस का जो रोल है वो ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि जो रिमोट सेंसिंग का जो डाटा है उसको भी आप जीआईएस इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं, आप जीआईएस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और उसके अंदर आप डाटा को प्रोसेस करते हैं और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं। ऑल राइट, और पैसिव सेंसर्स आपके कौन कौन से हैं, पैसिव सेंसर्स में जैसे लैंडसैट टीएम है, AVHRR है, स्पॉट है, मॉडिस है, आइकनोज है, क्विक बर्ड है एंड एयर फोटोग्राफी, ये सारे आपके पैसिव रिमोट सेंसर्स हैं। एक्टिव रिमोट सेंसर जैसे कि बात हुई कि वो ग्राउंड डेफॉर्मेशन के लिए और मूवमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उसके लिए हमें डिजिटल एलिवेशन मॉडल चाहिए होते हैं हाई रेजोल्यूशन के, तो उसमें आपका रेडार है, इनसार है, लाइडार है और सर्टम, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है सेंसर्स ये क्या करते हैं कि खुद ही पर्टिकुलर टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करते हैं, वो स्ट्राइक करती है किसी फीचर के ऊपर, फिर उसके बाद वो दोबारा वापस जाती है रिफ्लेक्ट होके और उसको वो सिस्टम रिकॉर्ड करता है। तो ऐसे सेंसर्स को आप क्या कहते हैं, एक्टिव रिमोट सेंसर्स। रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि हमने पहले देखा कि जो सेंसर्स होते हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिसके ऊपर वो ऑन बोर्ड होते हैं और उसकी बेस के ऊपर फिर आप वो रिमोट सेंसिंग करते हैं। जैसे कि पहले पहले जब ये कैमरा 1930s में इन्वेंट हुआ था, तो उस वक्त ये था कि आप बहुत ही लो रेजोल्यूशन की फोटोज ले सकते थे, लेकिन उसके बाद ये भी था कि हमने हमारी जो अर्थ है ऊपर से कैसी नजर आती, तो उसके लिए फिर पिजन्स भी यूज होते थे। पिजन्स जो हैं उनके जो भी उनके मतलब जो पंजे थे उनके साथ इसको अटैच कर देते थे कैमरा को, पिजन को ऊपर लेके जाते थे, तो वो पिजन जिस तरह से मूव करता था तो वो कैमरा जो था उसके वो फोटोज लेता था, क्लिक करता जाता, उसके साथ एक टाइमर लगा देते थे, वो जो टाइमर था वो जैसे चाबी वाले खिलौने होते थे, वो टिक करते जाते थे और मुख्तलिफ रीजन्स की जो थी वो फोटोज वहां पे डिफरेंट हाइट्स के ऊपर आ जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से ये लैंड फॉर्म की चेंजेस के लिए उस वक्त ये इस तरह से कैमराज यूज होते थे, ये एरोप्लेन की इन्वेंशन से पहले था, ठीक है, पिजन कैमराज। तो उसकी फिर उसके अलावा हॉट एयर बैलून्स, हॉट एयर बैलून्स जो थे उसमें भी आप कैमराज ले जाते थे और ऊपर जाके आप फोटोग्राफी करते थे।
ठीक है। इसी तरह से काइट्स भी यूज होती थी, ठीक है। काइट्स के साथ आप इस तरह से कैमरास लगाते थे और वो जो काइट्स हैं इसके थ्रू भी वो डिफरेंट टाइम सेट करके आप मुख्तलिफ एरियाज की फोटोग्राफी करते थे काइट को, मतलब उस तरह से मूव करके, राइट। सो दिस इज ऑल द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये सारी रिमोट सेंसिंग है, ठीक है। नो डाउट कि इसमें पुअर टाइप की रिमोट सेंसिंग है, इसमें हाइट भी आगे पीछे चेंज हो रही होती है। उसके बाद ये कि ये कैमरा की रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छी नहीं थी शुरू में। तो इसी तरह से जब ये सैन फ्रांसिस्को जो सिटी था 1906 में ये डिस्ट्रॉय हो गया था अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है। तो पूरे का पूरा सिटी जो था वो एक मलबे का ढेर बन गया था। उस वक्त क्या था कि यही कैमरास जो थे वो काइट कैमरास यूज हुए कि काइट के साथ उसको अटैच करके जो डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो थी वो क्या कहते हैं उसे ओवरऑल फोटोग्राफ्स लेके को एनालाइज किया गया कि ओवरऑल कितना डैमेज जो है वो प्रोड्यूस हुआ, कितने बड़े एरिया पे जो है वो आपकी क्या कहते हैं उसे डिस्ट्रक्शन हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप जो है वो रिमोट सेंसिंग शुरू में करते रहे। ऑल राइट, लेटर ऑन जब एयरप्लेन इन्वेंट हुआ तो उस वक्त जैसे राइट ब्रादरान थे, उन्होंने एयरप्लेन इन्वेंट किया, उसके बाद उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन हुई। मॉडिफिकेशन करके तो आपके पास आप क्या कहते हैं उसी के मिलिट्री प्लेन्स आ गए, आपको वॉर प्लेन्स आ गए, आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लेन्स आ गए, आपके पास जो है वो क्या कहते हैं उसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लेन्स आ गए। उसके बाद आपके पास हेलीकॉप्टर्स आ गए, छोटे प्लेन्स आ गए। इस तरह से ये डिफरेंट टाइप की जो एयर टेक्नोलॉजी जब इवॉल्व हुई है तो उसके बाद साथ साथ क्या रिमोट सेंसिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो गए, उनकी क्वालिटी, और ज़ाहिर है के साथ साथ कैमराज की रेजोल्यूशन भी इम्प्रूव होती गई और इस तरह से ये इवॉल्व करती गई टेक्नोलॉजी। और लेटेस्ट स्टेजेस पे अब क्या है कि आपके पास स्पेस शटल्स हैं, सैटेलाइट बेस्ड आपकी रिमोट सेंसिंग होती है, एरोप्लेन एयर बेस भी होती है, उसके अलावा हेलीकॉप्टर बेस भी, अब तो ड्रोन्स आ गए, ड्रोन बेस भी होती है। उसके बाद एक ग्राउंड बेस भी होती है कि ग्राउंड बेस आपके पास जैसे ये क्या कहते हैं उससे डिफरेंट, जैसे आपने एग्रीकल्चरल जो लैंड है उस वहाँ पे एग्रीकल्चर को स्टडी करना है, स्पेक्ट्रोमीटर्स यूज होते हैं, तो वो आपके इस तरह से ट्रक माउंटेड भी हो सकते हैं और उसके अलावा वो ट्राईपोड माउंटेड भी हो सकते हैं, पोर्टेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारी जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है वो आज लेटेस्ट जो है वो एडवांस हो चुकी हुई है और वो फिर आप कंप्यूटर्स के जरिए सैटेलाइट इमेजेस को डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले करके फिर आप उसको प्रोसेस करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन होती है और आपके पास जो है वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। So now we are going to talk about the important components of remote sensing, sensors and images. और सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है उसे कहते हैं IFOV. IFOV. What is this? The instantaneous field of view subtends an area on the terrain called a ground resolution cell, GRC, right? Or a measure of the spatial resolution of a remote sensing imaging system. IFOV also increases with altitude of the sensor. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आपका कैमरा कितना एरिया देख रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू ये है कि आपका जो एरिया आपका एक्चुअली आप देखिए जैसे कैमरे से आप फोटो लेते हैं आपको कुछ पर्टिकुलर डिमेंशंस तक जो है ना इमेज नजर आ रहा होता है, जिसका एरिया नजर आ रहा होता है जिसका आप इमेज ले सकते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप जितना किसी ऑब्जेक्ट के करीब जाते हैं वो जो एरिया है वो कम होता जाता है, ऐसे ही है ना। मतलब जब जूम करते हैं तो एरिया कम हो जाता है, क्लोज पिक्चर आती है किसी एरिया की, लेकिन जब आप जूम आउट करते हैं तो वो एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरह से जब आप पीछे जाते हैं, लेट्स सपोज अगर आपको ग्रुप फोटो लेना है तो बाद में आप पीछे अपने आप को एक दूसरे आप एडजस्ट करते हैं आगे पीछे होके ताकि वो पूरे के पूरे लोग उसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो इसमें जो जिस सेंट्रल पॉइंट पे आपका जो क्या कहते हैं उसे वो फोकस होता है कैमरे का, ठीक है, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। कि जिस एरिया पे आपका जो कैमरा है एक टाइम में देख रहा होता है, फोकस कर रहा होता है, ठीक है,
तो ये एक्चुअली ये जो फोकस होता है एक टाइम में एक जगह पे, ये उसकी स्पेशियल रेजोल्यूशन से भी रिलेट करता है। ठीक है, कि स्पेशियल रेजोल्यूशन को भी आप डिफाइन कर सकते हैं इसकी वजह से। तो जब आप इमेज कैप्चर करते हैं तो वो आप देख सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर एरिया को डिस्प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको हम आगे जिसे हम कहते हैं एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू जो है इसे कहते हैं, ये आप विड्थ ऑफ द जो इमेज है उसको डिफाइन करता है। लेट्स सपोज अगर आप एक फोटो लेते हैं तो वो फोटो की डिमेंशन ऐसी होती है। ठीक है, तो ये जो इसकी ये क्या है, ये इसकी विड्थ है। ठीक है, ये इसको हम कहेंगे इसकी विड्थ, इसको हम कहेंगे एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू। क्या कहेंगे? एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू। जितनी इंफॉर्मेशन आपकी जितने एरिया की आ रही है उसकी विड्थ जो है वो कहेंगे एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू। लेकिन एट अ टाइम जो उसका पिक्सल वाइज जो इंफॉर्मेशन है, मतलब जो पिक्सल उसके अंदर होंगे, उसको स्पेशियल रेजोल्यूशन भी कहते हैं। पिक्सल बड़े छोटे डिपेंड करता है कितने रेजोल्यूशन मेगा पिक्सल का कैमरा है, तो उसको हम IFOV कहेंगे कि उस वक्त जो पिक्सल लेवल पे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है किसी भी पर्टिकुलर क्या कहते हैं उसे, उसकी ग्राउंड किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, जिसमें मतलब उस छोटे लेवल पे जो पिक्सल वाइज जो इंफॉर्मेशन आती है उस वक्त वो उस कैमरा उसके ऊपर फोकस कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं IFOV। ठीक है, as a satellite evolves around the earth, the sensor sees a certain portion of the earth's surface. Definitely the area imaged on the surface is referred to the swath. अब ये जो विड्थ होती है इसको स्वैथ भी कहते हैं। ठीक है, the imaging swath of space borne sensors generally vary between the tens and hundreds of kilometers. जब आपका इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसर्स, इट मीन कि वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अबव होते हैं सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो एक टाइम में वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को देख रहे होते हैं। ठीक है, सेंसर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर एरिया को देख रहा होता है और जिसका वो इमेज लेता है, तो वो जो इमेज की विड्थ होती है उसे कहते हैं स्वैथ। ठीक है, उस इमेज की विड्थ को कहते हैं स्वैथ। जैसे हमारे कैमरा है तो हमारे कैमरे का स्वैथ क्या होगा, 4 सेंटीमीटर 4 इंचेस हो सकता है, 6 इंचेस हो सकता है। जो डिमेंशन है यूजुअली फोटो की होती है 4 इंच बाय 6 इंच या इस तरह की जो डिमेंशन है उसमें, तो वो जो विड्थ होती है वो उसे स्वैथ कहते हैं। ठीक है, कि जब आपका सैटेलाइट बेस्ड जो सेंसर है वो जो फोटो लेगा तो वो एक पर्टिकुलर रीजन की लेगा, पूरी अर्थ की एक दफा वो इमेज नहीं लेगा। ठीक है, तो वो जितनी विड्थ का इमेज होगा उसको हम कहते हैं स्वैथ, और ये किलोमीटर्स में हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का स्वैथ भी हो सकता है। ठीक है, कि एक जो इमेज है वो आपका हो सकता है 50 बाय 60 किलोमीटर का हो सकता है वो 100 बाय 200 किलोमीटर का हो। तो वो डिपेंड करता है आपका कैमरा कितना अच्छी रेजोल्यूशन का, स्पेशियल रेजोल्यूशन का, और वो कितना दूर या नजदीक है आपकी अर्थ से। So this is how you can define the IFOV, के जो आपके पिक्सल साइज की जो इंफॉर्मेशन सेंसर ले रहा होता है, रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, उसे कहते हैं IFOV। और जो इमेज की विड्थ होती है, ठीक है, ये इमेज की विड्थ है, इसे कहते हैं, इसे स्वैथ कहते हैं। और इस एंगल को जो बनता है इसे कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू एंगल, या इसको कहते हैं एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू, जो पिछली वाली स्लाइड पे हमने देखा है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट बेस्ड, ये सैटेलाइट मूव कर रहा है आगे की तरफ, और ये आपका सैटेलाइट जो है वो साथ में फोटोज ले रहा है। ठीक है, ये जैसे जैसे मूव करता जा रहा है ये आपकी फोटोज यहाँ पे बनती जाती है। ठीक है, तो इस फोटो का जाहिर है कि जो स्वैथ होगा वो किलोमीटर्स में होगा, इसका जो विड्थ होगी वो किलोमीटर्स में होगी। ठीक हो गया, ऑलराइट। सो नाउ वी हैव जो डाटा एक्वायर होता है, ठीक है, जो डाटा आपका एक्वायर होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है विस्क ब्रूम टेक्नोलॉजी और एक होती है पुश ब्रूम टेक्नोलॉजी। कि डाटा आपका जो है वो एक्वायर कैसे होना, सेंसर डाटा को कैप्चर कैसे करता है, मतलब ये कि फोटो खींची कैसे जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है वो दो तरह की टेक्नोलॉजी, एक है विस्क ब्रूम। विस्क ब्रूम का मतलब ये कि जैसे ये आपके पास एक झाड़ू है, तो झाड़ू आप कैसे देते हैं, इस तरह से मूव करते हैं एक तरफ से और इस तरफ जाते हैं। ठीक है, ये टू एंड फ्रो होता है कि झाड़ू जो है कभी इधर जाता है और कभी वो इधर जाता है, सॉरी फॉर द डिस्टॉर्शंस। तो वो झाड़ू जो है वो आपका ट्रू एंड फ्रो मूव करता है, तो इस तरह से आप किसी भी एक जगह को साफ करते हैं। ठीक है, तो इससे आप फेमिलियर होंगे कि झाड़ू अगर आप खड़े होकर दे रहे हैं तो वो आपका ट्रू एंड फ्रो मूव करता है और आप आगे चलते जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप झाड़ू देते हैं।
तो इसी तरह से इसकी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए उन्होंने सिंपल एक जो है ना वो किसी कॉमन एक्टिविटी से इसको तशबीह दी है। ठीक है, तो जो आपका सेंसर है, रिमोट सेंसर, वो क्या करता है, वो भी बाज दफे ऐसे होता है कि सेंसर जो है ना किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जैसे ये एक पर्टिकुलर विड्थ है, ये पर्टिकुलर विड्थ है तो सेंसर आगे मूव भी कर रहा है, जैसे ये कि सेंसर आगे मूव भी कर रहा है, और साथ में जैसे ये है तो ये एक स्ट्रिप जो है वो मैप होगी, फिर ये दूसरी होगी, फिर ये तीसरी होगी, तो कैसे मूव होती है ये, मतलब इधर से ऐसे फोटो लेके फिर वो इधर जाएगा, इधर से फोटो लेके फिर वो आपका सेंसर इधर जाएगा, फिर मूव करेगा, ये सारी स्ट्रिप जो है ना वो मूव होती जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से वो जो सेंसर है वो फोटो लेता जाएगा। ठीक है, अभी इधर से इधर, तो ये ट्रू एंड फ्रो मूव करेगा आपके कैमरे का लेंस, कैमरे का लेंस जो है वो आपका थ्रू एंड फ्रो मूव करता हुआ ये जो पर्टिकुलर एरिया, इसमें ये इमेजेस लेता जाएगा। जैसे ये एक इमेज आ गया ये वाला, ठीक है, ये एक इमेज आ गया, इसके बाद ये दूसरा इमेज आएगा, फिर ये तीसरा इमेज आएगा, इस तरह से ये आपका ट्रू एंड फ्रो मोशन जैसे होती है उसकी फॉर्म में ये पूरी एक पर्टिकुलर स्ट्रिप को ये इमेज कर लेगा। ठीक है, ये एक तरीका है। जब ये पूरी स्ट्रिप हो जाएगी फिर अगली स्ट्रिप आ जाएगी। ठीक है, फिर अगली स्ट्रिप, उससे जैसे सेंसर आगे जाता जाएगा फिर उससे अगली स्ट्रिप आ जाएगी। तो ये इस तरह से एक सवैत के अंदर रह के वो स्कैनिंग हो रही होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है ना वो कैमरा जो है वो इंफॉर्मेशन एक्वायर करता है। तो विस्क ब्रूम टेक्नोलॉजी को जो फॉलो करते हैं उसमें लैंडसैट मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनर है, लैंडसैट थीमेटिक मैपर है, ये क्या चीज़ें हैं इनकी डिटेल हम इंशाल्लाह आज ही लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। नोवा एडवांस्ड वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटर, ये भी सेंसर है। एयरबोर्न मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनर्स AMS भी इसी तरीके से काम करते हैं। अब ये देखेंगे ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो आपका, ये देखेंगे एक इमेज यहाँ से बना, ठीक है, फिर अगला इमेज यहाँ पे बनेगा मूव करते हुए, फिर उसके बाद अगला इमेज यहाँ पे बनेगा, तो इस तरह से ये रिकॉर्डिंग हो रही है डाटा की, फिर उसके बाद ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये अगर आगे जा रहा है तो फिर ये आगे चले जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये इमेज की रिकॉर्डिंग होती है, ये आपकी जो डाटा की रिकॉर्डिंग होती है अर्थ सरफेस के ऊपर सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी में। तो इसको हम क्या कहते हैं, विस्क ब्रूम टेक्नोलॉजी। एक है पुश ब्रूम। ठीक है, पुश ब्रूम जो टेक्नोलॉजी है वो क्या चीज है। पुश ब्रूम टेक्नोलॉजी में ये होता है कि जैसे आपका इस तरह का भी एक झाड़ू होता है, ठीक है, जिसमें ये ब्रश लगे होते हैं, तो इसको अगर इसी डायरेक्शन में आपने मूव करना है तो आप आगे की तरफ मूव करेंगे, इसको साइडों पे मूव नहीं करेंगे। ठीक है, इसको आप साइडों पे मूव नहीं करेंगे, इसको आप आगे की तरफ मूव करेंगे, कि इसको आगे करते जाएंगे, एक स्टेप में आगे किया, फिर उसके बाद आगे, फिर दोबारा से आगे किया, फिर आगे की, इस तरह से ये जो आपका जो ट्रैश है वो आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, स्टेप वाइज। तो इसी तरह से ये जो सेंसर्स हैं इसमें क्या होगा कि वो जो कैमरा है या जो सेंसर है वो मूव नहीं करेगा, वो बल्कि एक जैसे सैटेलाइट आपका आगे मूव करता है एक डिस्टेंस, वो इमेज ले लेता है, फिर उसके बाद वो अगला इमेज लेता है, पूरी की पूरी जो स्ट्रिप है वो एक ही तरफ मैप होती है। उसमें क्या था कि पिक्सल वाइज, उसमें पिक्सल वाइज स्टेप वाइज हो रही थी, ये देखें यहाँ पे क्या है कि ये पिक्सल वाइज हो रही है, फिर आगे मूव होता है, फिर इस तरह से ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है। ये है विस्क ब्रूम, झाड़ू की तरह। ये जो है ये आपका पुश ब्रूम है, इसमें क्या होता है कि आप आगे मूव करते जाते हैं, आप आगे मूव करते जाते हैं इस तरीके से कि एक पूरी की पूरी स्ट्रिप एक टाइम में यूज, एक पूरी की पूरी स्ट्रिप क्या हो रही है, एक ही टाइम में स्कैन हो रही है। वहां पे जो पिछला था पुश जो विस्क ब्रूम था, वहां पे एक जो पूरी स्ट्रिप है वो स्टेप्स में हो रही है ऐसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा, यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रिप एक ही दफा जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, वो स्कैन हो रही है। इसे कहते हैं, ऐसे सेंसर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं उसे कहते हैं पुश ब्रूम टेक्नोलॉजी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो यू आर वेरी वेलकम टू आस्क मी द क्वेश्चन। यूजुअली आप क्वेश्चन जो है वो पूछ नहीं रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अटेंडेंस लगाते हैं और अटेंडेंस लगा के आप गायब हो जाते हैं। ठीक है, एनी हाउ अगर आपने पेपर देना है तो डेफिनेटली आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपको ये सारे लेक्चर सुनने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे मेरा नुकसान नहीं हो रहा, आपका नुकसान हो रहा है। मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर यही कि उसी वक्त जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप लेक्चर्स को सुनेंगे तो आई विल बी अवेलेबल एट दैट टाइम, और आपके जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं व्हाट्सएप पे या इस तरह से गूगल के ऊपर क्लासरूम के अंदर मैं उसको आसानी से क्वेश्चंस को दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखें कि साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो यू आर वेरी वेलकम टू आस्क। So push broom scanners also sometimes referred
टू एज अ लॉन्ग ट्रैक स्कैनर्स। अ लॉन्ग ट्रैक स्कैनर का मतलब उसी ट्रैक के अंदर ही आप जो है ना वो स्टेप वाइज मूव करते जा रहे हैं। use a line of detectors arranged perpendicular to the flight, perpendicular to the flight मतलब फ्लाइट अगर इस तरफ जा रही है तो और आपका जो स्कैनर है वो इस तरीके से जो स्कैनर या कैमरा है वो इस तरीके से अरेंज है। ये आप क्या कर रहे हैं, ये फोटोज ले रहे हैं वहां पे नीचे की, ठीक है। और उसके बाद वो आगे मूव करता है, फिर अगली फोटो आ जाती है इस तरीके से स्टेप में। ठीक, ये पूरी की पूरी एक दफा स्ट्रिप जो है ना वो स्कैन हुई, तो उसके बाद अगली स्ट्रिप स्कैन हो जाती है, ठीक है। और ये सेंसर आपका आगे ये जो प्लेटफॉर्म है आगे मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी परपेंडिकुलर है, फ्लाइट की परपेंडिकुलर है, ठीक है। As the spacecraft flies to forward, the image is collected one line at a time. ये जो है ना ये क्या है, ये लाइनें बनी हुई है, देखिए ये लाइंस है, ये स्ट्रिप्स है, ठीक है। वन लाइन एट अ टाइम, और इस तरह से पूरी की पूरी स्ट्रिप जो है वो मैप हो जाती है, ठीक है। सो विद ऑल द पिक्सेल्स इन द लाइन बीइंग मेजर्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। अ पुश ब्रूम स्कैनर रिसीव्स अ स्ट्रॉन्गर सिग्नल देन अ whisk broom scanner because it looks at each pixel area for a longer time, ठीक है। क्योंकि एक ही टाइम में पूरी स्ट्रिप मैप होती है, इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम लेता है ये स्कैनर सारे पिक्सेल्स को एक ही टाइम में देखने पे, और उसके बाद आप उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। वन ड्रॉबैक ऑफ पुश ब्रूम सेंसर्स इज दैट द डिटेक्टर्स इन द पुश ब्रूम टेक्नोलॉजी कैन हैव वेरिंग सेंसिटिविटी। If they are not perfectly calibrated, this can result in the stripes in the data. वो कह रहा है कि ये इसकी सेंसिटिविटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है अगर कोई भी सेंसर कैलिब्रेटेड नहीं है, जियो रेफरेंस प्रॉपर नहीं है। और अगर वो लेट्स सपोज एक इमेज लेता है, उसके बाद अगले इमेज लेने में वो सेंसर को आपने भी देखना है कि प्लेटफॉर्म मूव कैसे कर रहा है, एयरप्लेन मूव कैसे कर रहा है। अगर एयरप्लेन की मूवमेंट ज़्यादा तेज़ है और आपके जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे स्कैनर जो है उसकी पिक्चर लेने की स्पीड थोड़ी कम है, हो सकता है कि डाटा गैप्स आ जाएंगे। एक स्ट्रिप पूरी मैप हुई है तो थोड़ा सा हो सकता है उसमें कोई गैप आ जाए, फिर अगली स्ट्रिप मैप कर रहे हैं, फिर उससे अगली कर रहे हैं, तो उनमें गैप्स आ सकते हैं। इट मीन्स कि आपने सेंसर्स को प्रॉपरली कैलिब्रेट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक्यूरेटली जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो इन्वायरमेंट की या अर्थ की जो है वो उसको स्कैन कर सकें। और इसमें ये भी एक चीज़ याद रखें, जो सेंसर होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है, उसकी आल्टीट्यूड चेंज नहीं होनी चाहिए। वो एक ही आल्टीट्यूड के ऊपर जो है वो रहते हुए इंफॉर्मेशन को ले, तो तब उसकी जो रेजोल्यूशन है वो अफेक्ट नहीं होती, डाटा की जो क्वालिटी है वो भी एक जैसी रहती है। ये नहीं कि कभी वो 1 किलोमीटर नीचे आ गया एयरप्लेन, कभी ऊपर चला गया, इस तरह से जो डाटा कलेक्ट होगा उसकी रेजोल्यूशन एक जैसी, मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो एक जैसी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ये ख्याल रखना होता है, अकॉर्डिंगली ये कैलिब्रेटेड होती हैं। और बाज़ दफ़ा ऑटो पायलट जो है वो जो जहाज़ होता है वो ऑटो पायलट मोड में होता है, ऑटो पायलट में, ताकि डेप्थ जो उसकी जो अल्टीट्यूड है वो एक ही रहे और डायरेक्शन जो है वो भी उसी तरह से चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Alright, so now we are going to talk about the spatial resolutions, जो कि हमने पिछले कई लेक्चर्स में हमने इनडायरेक्टली कुछ डिस्कस की हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम इनको डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे कि स्पेशियल रेजोल्यूशन जो है उसका मतलब क्या है। कि स्पेशियल रेजोल्यूशन जो रेजोल्यूशन है, जो डाटा की एक जो रिमोट सेंसिंग डाटा है इसकी एक से ज़्यादा रेजोल्यूशन होती है, ठीक है। तो उसमें जैसे आपके पास स्पेशियल रेजोल्यूशन है वो हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो रेजोल्यूशन है ये 4 तरह की है। Image depends on the wavelength response of the sensing instrument, radiometric and spectral resolution, and the emission of the reflection spectra of the target, the signal. अच्छा, पहले नंबर पे ये आपके पास एक होती है रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन और एक होती है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, ठीक है, 1 and 2। तो ये डिपेंड कर रही होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर। किस पे डिपेंड कर रही होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर, कि वो कितनी रेडिएशंस एक टाइम में जो बैंड्स हैं कितने यूज हो रहे हैं और कितनी उनकी विड्थ है। उसके बाद ये कि वो जो इमेज जो है उसकी जो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन का मतलब है कि वो जो मटेरियल, वो जो क्या कहते हैं उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो कितनी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, किस तरह का उसका डिजिटल नंबर है, ब्राइटनेस वैल्यू है, तो वो उसकी रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि कितने बैंड्स है उस पर्टिकुलर डाटा में, उसके नंबर्स पे डिपेंड करता है कि स्पेक्ट्रल बैंड्स
जो है वो कितने हैं और उसकी रेजोल्यूशन अकॉर्डिंगली डिफाइन की जाती है। लेकिन रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन डिपेंड करती है कि उसकी ब्राइटनेस वैल्यू कितनी है, वो जो पिक्सल्स की वैल्यूज हैं बी वी जिसे कहते हैं, ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया है। वो जो ब्राइटनेस वैल्यू उसको रिफ्लेक्टेंस भी कहते हैं, ठीक है, ऑलराइट, परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस। इसी तरह से जो साइज है उसके हिसाब से जो इमेज जो पिक्सल का जो साइज है, डायमेंशन जो है उसके हिसाब से जो रेजोल्यूशन होती है उसे कहते हैं स्पेशियल रेजोल्यूशन। तो ये थर्ड टाइप की रेजोल्यूशन है, ठीक है, जितना पिक्सल साइज छोटा होगा उतनी ज्यादा अच्छी इसकी रेजोल्यूशन होगी। पिक्सल साइज 1 मिलीमीटर का भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है रिमोट सेंसिंग में, और 1 किलोमीटर का भी हो सकता है, ठीक है। Knowledge of the changes in the target area depends on how often we collect the information. इसे कहते हैं टेम्पोरल रेजोल्यूशन। लेट्स सपोज कि किसी पर्टिकुलर एरिया की आप इमेज लेते हैं, ठीक है, अगर आप फर्ज करेंगे किसी जगह पे आप एग्जैक्ट सेम जगह पे आप ना जाते हैं, लेट्स सपोज पहले पहले साल गए फोटो ले ली, उसके बाद आप दूसरे साल जाते हैं फिर फोटो ले लेते हैं, फिर उसके बाद आप जाते हैं अगले साल फिर उसी जगह पे जाते हैं फोटो ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्पोरल रेजोल्यूशन आपकी क्या हुई, आपकी जो वहां जाने की वो 1 ईयर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिमोट सेंसिंग इंफॉर्मेशन आप कॉन्टिन्यूसली क्योंकि आप ले रहे होते हैं सैटेलाइट बेस्ड, तो उसमें ये होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आपका सेंसर कितने टाइम के बाद दोबारा पहुंच जाता है। इसका मतलब पूरे ग्लोब की इंफॉर्मेशन स्कैन होके दोबारा से वहां से स्टार्ट जब होता है तो उस पूरे ग्लोब की इंफॉर्मेशन को स्कैन करने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो हर सेंसर की अपनी एक टेम्पोरल रेजोल्यूशन भी होती है। उस रेजोल्यूशन की बेस के ऊपर क्या होता है कि आप ये देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में चेंजेस कैसे रूनुमा हो रही है। कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर लेट्स सपोज एक सेंसर जो है वो एक हफ्ते के बाद जाता है किसी सेम एरिया में वो दोबारा से आ जाता है पूरी जो अर्थ के अराउंड इंफॉर्मेशन है उसको स्कैन करके, तो उसे हम कहेंगे उसकी जो रेजोल्यूशन है वो 1 वीक है। अगर एक दिन के बाद 24 आवर्स के बाद आ जाता है वही सेंसर दोबारा उसी जगह पे, तो उसे कहते हैं 1 डे उसकी टेम्पोरल रेजोल्यूशन है। बाद सेंसर ऐसे हैं जो 15 डेज लेते हैं, बाद ऐसे हैं जो 30 डेज भी लेंगे, 2 मंथ्स भी लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो सेंसर्स हैं वो दोबारा से उस पर्टिकुलर एरिया को कितने देर के बाद रिविजिट करते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं टेम्पोरल रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि एक होती है रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन और एक होती है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन और एक होती है स्पेशियल रेजोल्यूशन और चौथी होती है टेम्पोरल रेजोल्यूशन, ठीक है। सो दिस इज द रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन की फर्दर जो है वो जो रिफाइनमेंट यहाँ पे है, इसमें क्या करते हैं आप, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है कि आप शेड्स ऑफ ग्रे को देखते हैं कि डाटा कितने शेड्स ऑफ ग्रे में रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपको पता है कि अगर तो 2 बिट डाटा हो तो उसका मतलब है कि 2 शेड्स ऑफ ग्रे, या तो कोई जो लाइटर चीजें हैं वो वाइट हो जाएंगी, जो डार्कर चीजें हैं वो ब्लैक हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 बिट डाटा है। 2 रेज पावर 1 का मतलब ये कि 1 बिट डाटा। जैसे प्योर अगर आपके पास कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म हो तो या एक चीज पूरी काली नजर आए हो या एक व्हाइट नजर आए, तो ये इसका मतलब ये बहुत कम रेजोल्यूशन है कि आप किसी भी एरिया को ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब या तो वो चीज ब्लैक है या वो चीज व्हाइट है। तो ये इसका मतलब यह है कि इसकी जो रेजोल्यूशन है रेडियोमेट्रिक वो है 1 बिट, ठीक है। सो सेंसिटिविटी ऑफ द सेंसर टू मैग्नीट्यूड ऑफ द रिसीव्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डिटरमाइंस द रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। Finer the radiometric resolution of a sensor, it is more sensitive to in detecting the small differences, ठीक है। कि जितनी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी उतने शेड्स ऑफ ग्रे बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब कि ज्यादा मटेरियल हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो उसके बाद जो आपकी जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में होती थी पुराने ज़माने में, जो मूवीज़ होती थी, उनकी जो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन होती थी वो 4 बिट होती थी ज़्यादातर, कि उसमें 16 शेड्स ऑफ ग्रे आप आइडेंटिफाई कर सकते थे, जो कि आपकी आई की रेजोल्यूशन भी है, ठीक है। जैसे कि आपकी आई की रेजोल्यूशन है तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि कलरफुल जो ड्रेसेस थे वो भी आपको लाइट और डार्कर शेड में नजर आते थे, डिफरेंट शेड्स में। इस तरह से और भी जो डिफरेंट फीचर्स थे वो आपको लाइटर और डार्कर शेड्स में नजर आते थे। तो ये जो डाटा है ये आपका उस वक्त जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज में ज्यादातर वो 4 बिट होता था, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो डाटा मैक्स जो सैटेलाइट रेजोल्यूशन का है वो 16 बिट तक भी जाता है, ठीक है। लेकिन 8 बिट जो रेजोल्यूशन है वो काफी अच्छी रेजोल्यूशन समझी जाती है, ठीक है। अब देखेंगे ये 2 शेड्स ऑफ ग्रे हैं,
ये 16 शेड्स ऑफ ग्रे हैं। और यहाँ पे देखें कि ये आप इसको डिविजन्स देख लें, आपको नजर आ रही है डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे की, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे रेजोल्यूशन बढ़ती जाती है ये जो डिवीजन है ये फाइनर होती जाती है। अब यहाँ पे देखें ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ये शेड्स ऑफ ग्रे जो है ये कॉन्टिन्यूस है 256 तक। तो इस तरीके से जो है आपके पास जो डिफरेंट जो इमेज प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर उसमें भी ये डिफरेंट कलर्स की ना आपके पास वो प्लेट्स नजर आएंगे। उसमें आप जिस जहाँ क्लिक करते हैं वही कलर आपका डिफरेंट बॉक्सेस में जो आपने एरिया सेलेक्ट किया उसको कलर देने के लिए वहाँ का वो कलर उसी तरह से चेंज होता रहता है। तो इस तरह से ये एक्चुअली उसकी कलर स्कीम ये है कि आप उसको शेड्स ऑफ ग्रे में भी डिफाइन कर सकते हैं और आप उसको उसी कलर के शेड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह की जो रेजोल्यूशन है उसको कहते हैं रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। स्पेशियल रेजोल्यूशन डेफिनेटली पिक्सल साइज है। अब किसी एक पर्टिकुलर एरिया का जो है वो अगर आप इमेज लेते हैं बिल्कुल 2 मेगापिक्सल कैमरे से, आप देखेंगे वो ब्लर आएगा। अगर आप उसका 4 मेगापिक्सल से लेंगे और क्लियर आएगा, 10 मेगापिक्सल से लेंगे तो और क्लियर आएगा एक ही एरिया का। इस बीच की वो डेप्थ ऑफ जो इमेज है वो बढ़ती जा रही है। उसका मतलब ये कि पिक्सल साइज छोटा होता जा रहा है। जितनी इंफॉर्मेशन ज्यादा रिफाइंड होगी उतना पिक्सल साइज छोटा हो जाता है, उतना आप जूम इन ज्यादा कर सकते हैं, उतना जूम इन क्लोज करके आप ज्यादा देख सकते हैं। अब ये देखें जैसे किसी भी एक ही पर्टिकुलर एरिया उसमें ये जो इमेज है ये इसमें पिक्सल साइज है 0.5 by 5 मीटर। अब देखें काफी चीजें आपको क्लियरली नजर आ रही है। यहाँ पे देखें 1 by 1 मीटर है तो थोड़ी सी चीजें ब्लर हो गई है। ये 2 by 2 मीटर है तो आप वेजिटेशन को देखें थोड़ी सी ब्लर हो गई है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी मतलब फिर उसके बाद 5 by 5 मीटर में देखें तो काफी ब्लर हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देखें 10 by 10 में तो और ब्लर हो गई। अब आपको सिर्फ पिक्सल से नजर आ रहे हैं, आपको सही शेप्स नजर नहीं आ रही ऑब्जेक्ट्स की जो यहाँ पे है। 20 by 20 में बिल्कुल ही पिक्सल हो गए हैं। और उसके बाद 40 by 40 मीटर में देखें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि वहां क्या है। उसके बाद आप 80 by 80 में जाएं तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे तरीके से नजर नहीं आ रही। तो ये देखेंगे कि आपके पास जो है वो ये क्या कहते हैं उससे, जो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है ये वाली, ये आप क्या कहते हैं उससे स्पेशल साइज की बेस के ऊपर चेंज हो रही है। आप ये देखें जैसे ये यही एग्जांपल दी हुई कि 0.5 by 5 में पिक्सल साइज कितना छोटा है, ये देख लें ये कितना छोटा है। जैसे जैसे पिक्सल साइज बढ़ता जा रहा है। अब देखें जैसे यहाँ पे अगर लेट्स सपोज ये 80 by 80 मीटर का एरिया, आप देखें इस पे घर भी है, वेजिटेशन भी है, सारी एवरेज होके कोई एक खास पर्टिकुलर पिक्सल की मतलब ये लेट्स सपोज ये वाली पिक्सल की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से ये वो घर भी उसके अंदर मिक्स हो गए। इसका मतलब कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आएगी अगर आपने लैंड यूज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन आपको ज्यादा फाइनर चाहिए। लेकिन जब आपने टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन लेनी लेट्स सपोज तो वो 80 by 80 मीटर रेजोल्यूशन भी चलेगी, बल्कि वो बहुत ज्यादा होगी। आप 1 by 1 किलोमीटर की रेजोल्यूशन भी देख सकते हैं क्योंकि उसमें आपने सिर्फ टेम्परेचर देखना है, वहां का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो जितना साइज छोटा होगा उतनी ज्यादा अच्छी रेजोल्यूशन आपके पास आएगी डेटा की, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ज्यादा इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, ज्यादा फीचर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये उसकी डेफिनेशन है, ऑलरेडी हमने इसी को एक्सप्लेन कर दिया। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपके पास रिफ्लेक्टिविटी है, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स का। तो आप ये देखेंगे ये आपके पास एक तरफ ये है रिफ्लेक्टेंस है, ठीक है, और एक तरफ आपके पास है वेवलेंथ इन मिलीमीटर्स, ठीक है। कि जितनी लाइट की वेवलेंथ आगे पीछे हो रही है इस तरह से डिफरेंट मटेरियल्स की सेंसिटिविटी रिफ्लेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। जैसे ये वाटर है, अब वाटर जो है उसकी रिफ्लेक्टिविटी यहाँ तक है, इस बैंड तक आपको नजर आएगी, ठीक है। कि रिफ्लेक्टिविटी बहुत कम है क्योंकि ये यूजली डार्क नजर आता है। वेजिटेशन देखिए, वेजिटेशन जो है उसकी डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंजेस के अंदर डिफरेंट पीक्स हैं। ये देखेंगे इस तरफ आपके पास क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसके लिहाज से जो वेजिटेशन है उसका जो स्पेक्ट्रम है वो चेंज हो रहा है। देखिए ये फिर एक पीक यहाँ पे है, यहाँ पे डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रीजन्स है उसके अंदर जो डिफरेंट आपके मटेरियल्स हैं वो डिफरेंटली बिहेव कर सकते हैं। तो जैसे ये वेजिटेशन डिफरेंटली बिहेव कर रही है। सॉइल जो है, अब ये देखें सॉइल जो है वो भी इसी तरह से आप देखेंगे पीक्स आपकी डिफरेंट है। अगर आपको एक जगह बिल्कुल सॉइल ही है तो वो सॉइल जो है उसकी भी पीक्स जो है वो डिप्रेशन जो है वो वेरी करेंगे आपकी वेवलेंथ के हिसाब से,
ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सी कि स्पेक्ट्रल जो सिग्नेचर होता है डिफरेंट मटेरियल्स का, वो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या बैंड के हिसाब से वेरी करता है। ठीक है, उसकी जो रिफ्लेक्टिविटी है वो चेंज होती है और उसको आप उसी तरह से मेजर भी करते हैं। तो सिमिलरली इसी तरह से आप डिफरेंट मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसके लिए एक बैंड इतना सेंसिटिव नहीं होता, तो उसके लिए फिर आप दूसरे बैंड की जो इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं तो उसमें वो आपको क्लियरली एक पीक भी नजर आ जाएगी, या डिफरेंशिएशन जो है वो एक मटेरियल के दूसरे से आप इजीली कर सकते हैं। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन में आप देखें अगर ब्लैक एंड व्हाइट कलर आपके पास अब इमेज आता है, अब ये देखेंगे यहाँ पे आपके पास क्या है कि शेड्स ऑफ ग्रे आ रहे हैं, कि इसमें कुछ शेड्स डार्कर हैं, कुछ जो उसमें लाइटर है, तो जो भी इस इमेज की रेजोल्यूशन उसके अकॉर्डिंगली वो शेड्स इस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अगर आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अगर आपके पास ये रिमोट सेंसर ऐसा है जिसमें एक ही बैंड है, ठीक है, एक जस्ट वन बैंड है, एक ही बैंड, उसको हम कहते हैं उसमें फिर क्या होगा कि एक ही इमेज आएगा, मोनोक्रोमेटिक इमेज उसे कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक। उसमें क्या होगा कि आपके पास एक ही इमेज आएगा और वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास किसी एक सेंसर में तीन बैंड हैं तो जब आप तीनों बैंड्स को आपस में मिलाएंगे तो आपके पास कलर्ड इमेज बनता है। ठीक है, तो मिनिमम तीन बैंड्स की कॉम्बिनेशन होगी तो कलर्ड इमेज बनता है, वरना नहीं बनता। अच्छा, अब ये इस यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, आप अपने कैमरा से भी आजकल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कलर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास तीन बैंड्स मिलेंगे। जैसे कलर्स में हमने डिस्कस किया कि ब्लू, ग्रीन, रेड, ये तीनों बैंड्स का कॉम्बिनेशन होगा जो कि आपके कैमरे में यूज होते हैं। ये तीनों बैंड्स आपके कैमरे में, और ये आपके पास क्या है, विजिबल रेंज है, कि इस रेंज के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की आप चीजें देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको चीजें नजर आती हैं, सारी जितने भी कलर्स हैं सारे के सारे इसी के कॉम्बिनेशन में आपको नजर आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपके पास तीन बैंड्स का डाटा है, एक ये वाला ब्लू बैंड है और एक आपका ग्रीन बैंड और एक है रेड बैंड, जब तीनों बैंड्स को आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जब आप तीनों को मिलाएंगे, कॉम्बिनेशन को कंबाइन करेंगे, तो फिर आपके पास आएगा कलर्ड इमेज। ठीक है, सो कैन यू टेल द कलर ऑफ द प्लेटफॉर्म टॉप, अब ये मतलब इसका कलर क्या है आपको नहीं पता। हाउ अबाउट हर सैश, सैश का कलर क्या है, ये वाली जो है, ये भी नहीं हमें पता। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मतलब डार्क सा नजर आ रहा है, लेकिन क्या है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट है। तो कलर में जब आप आएंगे, तीन बैंड्स कंबाइंड होंगे तो आपको ये इस तरह से पता चल जाएगा कि किस चीज का कलर क्या है, लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज नहीं है। ठीक है, अगर एक बैंड होगा तो वो ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगा, अगर आपके पास तीन बैंड्स होंगे तो वो मिलके, जैसे हमारी आई है, हमारी आई के अंदर क्या है कि ये तीनों बैंड्स को हम डिटेक्ट करते हैं हमारी आई, उसके बाद इनके कॉम्बिनेशंस में फिर आपके पास आ जाता है कलर्ड इमेज। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में विजन एंड कलर्स वाले टॉपिक में हमने ब्लेंड को देखा, किस तरह से डिफरेंट बैंड्स के कलर्स आपस में मिलके एक कलर्ड इमेज देते हैं। ठीक है, ये सब उसकी ब्राइटनेस वैल्यू की बेस के ऊपर होता है। ठीक हो गया। So color images need at least 3 sensing devices. It means कि थ्री रेजोल्यूशन उसकी होनी चाहिए, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन RGB. Using increased spectral resolution, 3 sensing wavelengths adds information. In this way, by sensing RGB can combine to get a full color image. ये हमारे कैमरा जो है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। Similarly, तो ये स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन डिफरेंट बैंड्स की गिवन है। ये देखें, ये डिफरेंट बैंड्स हैं आपके पास, बैंड 1 2 3 4 5, इसमें ये वेवलेंथ है। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, विजिबल ब्लू, विजिबल ग्रीन, विजिबल रेड, ये तीनों की आप जो है वो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ की रेंज है तीनों की, इसके अंदर आप विजिबल मतलब आप जो भी चीजें देखते हैं वो नेकेड आई से इस रेंज के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो हर जो बैंड है इसकी अपनी एक क्या है, अपनी एक इसकी रेजोल्यूशन है, इसकी अपनी एक एप्लीकेशन है कि कौन सा बैंड किस तरह के मटेरियल को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, मेरे ख्याल में पहले लेक्चर का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका 40 मिनट्स या 45 मिनट्स का ही होगा। तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं और फिर इसके बाद यहाँ से अगले लेक्चर में यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।